जवाहर नवोदय विद्यालय नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। विद्यार्थी गणित एवं भूगोल को बेहतर ढंग से सीख सकें, इसका एक प्रयास हमने किया है। Most welcome to Mathematics Park. Myself, साधक नागवंशी, PGT मैथमेटिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय बोहानी डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। सर, इस मैथमेटिक्स पार्क को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि क्लास 6वीं से लेके 12वीं तक के समस्त जो टॉपिक है इसमें कवर करने का निरंतर प्रयास किया गया और प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इसका जो एंट्रेंस है पाई गेट, इसको भी बच्चे जो है पाई के बारे में जाने, इस हेतु इस गेट का इस प्रकार से निर्माण किया गया है। जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन विलियम जेम्स और इसको जो फेमेसिटी दी आयलर ने, उसके बाद जो है यूक्लिडियन जो ज्योमेट्री है उसमें इसे जो डिफाइन किया गया, दिस इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड it is irrational number. Its value is 3.14 up to the swan and value ये जो नंबर है 3.14159 up to the swan। बाद में इसमें कुछ जो है आफ्टर द 750 डिजिट्स कुछ जो डिजिट्स है वो रिपीट हुए थे 999 6 टाइम्स जो 9 आया था उसको बोले थे फीमेन पॉइंट। सर, सो मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम आफ्टर 10th क्लास इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके लिए हम लोगों ने जो है उसे समझाने के लिए जो ऑक्टेंट है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसको समझाने के लिए जो है ये जो मॉडल है ये प्रिपेयर किए हैं ताकि जो बच्चे हैं जल्दी से समझ सके। 11th क्लास के बाद 12th क्लास में सबसे जो ज़्यादा परेशानी बच्चे महसूस करते हैं वो है प्लेन में। इसलिए जो प्लेन का जो है ये मॉडल जो बनाया गया है, इसमें जो प्लेन है उसके जो इक्वेशंस है किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। इसके लिए सपोज दैट दिस इज द प्लेन, वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दिस पॉइंट इज ए एंड हुज पोजीशन वेक्टर इज ए एंड अनदर पॉइंट this p and this p is the variable point. This is the variable point. Join this AP. Position vector of AP is r minus a. Now this line completely lie on the plane. This is the normal perpendicular to the AP. Therefore AP dot vector n is equal to 0. So therefore the equation of plane is r minus a dot n is equal to 0. Most of the student visualize this model and understand the concept of the equation of plane. Now this plane passing through the one point or this plane passing through the 3 non-collinear points. This is the working model for 12th class. Now this is the first plane and this is the second plane. These are two intersecting plane. Our object is this, we will find the angle between two planes. This is the working model for verification of mean value theorem. स्टूडेंट्स यहाँ आकर ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस कार्ड is equal to slope of this tangent. That means f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. Now from this a and b, between a and b, at least one point here, tangent is parallel to the x-axis. Therefore slope of this tangent is equal to 0, f dash c. At least we get one point here when tangent is parallel to the x-axis. Model for 9th and 10th class geometry. This is the circle. Now students come in the garden and check it. This is the diameter of the circle and now in any point join this line and this line, this make a 90 degree. यह जो मॉडल है ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बच्चे जो है यहाँ आकर स्पष्ट रूप से जो है ये एक्टिविटी जो है कर सकते हैं कि दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू and etc. Suppose that now one students come here and now join this is this point to this point. Suppose that this is a and this is point b, this is point b, this and now this एक्टिविटी ये जो करते रहेंगे
तो इससे जो है दिस इज द 1-1 फंक्शन, दिस इज द 1-1 फंक्शन and so many functions are described in this model. This is the verification of Pythagoras theorem. Now this is the right angle triangle, this is right angle triangle, this is the hypotenuse, this is base and this is perpendicular. This is 3 unit, 4 unit. Okay, तो स्क्वायर ऑफ दिस, ये इसके जो स्क्वायर होंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and now number of squares here 1 2 3 4, this is a 16 square, so 16 plus 9, that means here 25 number of squares. This is square pyramid. Number of faces 5, number of edges 8 and number of vertices 5. So therefore verification of Euler's formula F plus V is equal to E plus 2. तो इस प्रकार से जो है यूलर्स फार्मूला को जो वेरिफिकेशन के लिए डिफरेंट प्रकार के जो पॉलीहेड्रॉन हैं वो यहाँ बनाए गए हैं। नमस्कार, मैं अजय राजपूत, पीजीटी इतिहास जवाहर नवोदय विद्यालय नरसिंहपुर भूगोल पार्क में आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ मेरा भूगोल पार्क देखिए। आइए, ये है पृथ्वी का एक प्रतिरूप मॉडल जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक ग्रिड है। आमतौर से इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपने आप करके सीखें। यहाँ पर हमने चीज़ों को दर्शाने के लिए मैग्नेटिक प्लेट लगाई है। बच्चे को ये बता दिया जाएगा कि ये इक्वेटर है और बाद में उससे पूछा जाएगा कि इक्वेटर कहाँ है, उस पर आप अपनी प्लेट लगाएं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, पीछे पृथ्वी का आंतरिक रूप दिया गया है, किस तरह से अंदरूनी लेयर हैं उनके बारे में, उनको हमने यहाँ पर भी दर्शाने की कोशिश की है। ये हमने भूपरिपट्टी बनाई है, ऊपर का ये मेंटल है, मेंटल के बाद ये कोर, आउटर कोर जिसे हम कहते हैं, और फिर इनर कोर बनाई है। ये भी निकाल कर बच्चा इनको दोबारा एडजस्ट करेगा ताकि वो सीख सके कि वास्तव में पृथ्वी कैसी है। यहाँ पृथ्वी के झुकाव को भी हमने इसमें दिखाया है। यहाँ पर हमने सिस्मोग्राफ यंत्र को बनाया है। सिस्मोग्राफ यंत्र भूकंप को मापने का एक यंत्र होता है। यहाँ पर एक रोलर लगा हुआ है जो चलता है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और साथ ही साथ ये एक ग्राफ को यहाँ पर तैयार करता है कि किस तरह से अगर थोड़ा भी कंपन इसमें आता है तो इसके ग्राफ में परिवर्तन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये सिस्मोग्राफ है। हमने यहाँ पर इसके फोकस को भी दर्शाने की कोशिश की है, एपिसेंटर कहाँ पर होता है। इस तरह से हमने एक मॉडल तैयार किया है। एक और मॉडल हमने यहाँ पर बनाया है। ये मॉडल है ज्वालामुखी का मॉडल। ज्वालामुखी जिससे आप सभी परिचित होंगे। ये पृथ्वी पर खुले छिद्र से लावा या मैग्मा के निकलने से बनता है। यहाँ पर हमने इसको बनाया है। ये मैग्मा हमने बहते हुए दिखाया है। ज्वालामुखी के बारे में मैं यहाँ थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। हमारी जो पृथ्वी है उसकी अंदरूनी सतह में गर्म पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ है और ये मैग्मा जहाँ भी हमारी भूपरिपट्टी कमज़ोर होती है वहाँ से वो मैग्मा निकलकर और बाहर आ जाता है और धीरे धीरे ये ज्वालामुखी की आकृति बन जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैग्मा चेम्बर है और ये वेंट है। इस वेंट के माध्यम से मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ आता है। ये मैग्मा का फ्लो है या जिसे हम लावा फ्लो कह सकते हैं। जब ज्वालामुखी उद्भेदित होता है तो बहुत सारी धूल निकलती है और तेज़ी से ये उद्भेदित
हो जाता है। अभी हमने पृथ्वी के बारे में देखा, हमने ज्वालामुखी के बारे में देखा। आइए अब हम चट्टानें कैसे बनती हैं उनके बारे में जानें। उसका एक मॉडल हमने यहाँ पर तैयार किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब लावा बाहर निकलता है तो अग्नेय शैल का निर्माण करता है और बहुत सारे सेडिमेंट्स जब जमा हो जाते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं और यही अग्नेय शैल और अवसादी शैल जब ताप और दाब के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं तो ये कायंत्रित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ हमने 3 उनके प्रयोग किए हैं। यहाँ इग्निस रॉक का एक सैंपल हमने यहाँ लगा रखा है। ऊपर जो है वो इग्निस रॉक है, फिर यहाँ सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। अग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायंत्रित शैल के उदाहरण यहाँ हमने लगाए हैं। हमने वायु की दिशा को दर्शाने के लिए यहाँ पर कि वायु किस गति से किस दिशा में बह रही है, एक विंड डायरेक्शन को लगाया हुआ है। जब वायु इस विंड डायरेक्शन वाले बलून में आती है तो ये प्रदर्शित करता है कि वायु किस दिशा की ओर चल रही है। दिशाओं की जानकारी के लिए ये एक दिग्सूचक यंत्र हमने बनाया है, दिशा सूचक यंत्र है। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वायु की गति किस तरह से है, उसको भी ये मेज़र करने का एक यंत्र बनाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये वर्षा का मौसम है। इस वर्षा के मौसम में वर्षा को कैसे मापा जाता है, इस भूगोल पार्क में एक वर्षा मापी यंत्र लगाया। वर्षा के इस मौसम में वर्षा को कैसे नापा जाता है, इसके लिए हमने यहाँ एक वर्षा मापी यंत्र लगाया हुआ है। ये जितनी भी वर्षा होती है वो इसके अंदर एकत्रित हो जाती है। एकत्रित होने के बाद हम इसको कैसे मेज़र करेंगे या इसको कैसे मापेंगे, तो इसमें एक हमारे पास मेज़र करने के लिए एक ग्लास यहाँ मौजूद है। इस ग्लास के माध्यम से जो भी वर्षा का जल इसमें एकत्रित हुआ है उस जल को हम इसमें डालेंगे और कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है वो हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। तीव्र गति से चल रही है और इस वायु से ऊर्जा बनाने के लिए हमने एक पवन चक्की बनाई हुई है। यहाँ पर विंड मिल बनाया हुआ है। ये विंड मिल पवन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।